Assalamu alaikum students, I'm your teacher Muhammad Mahi, and today we are on lecture number 3, which is Surah Al-Alaq 1-5 is to 96, and we will study about the main theme and importance of the main theme. यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि we are on paper number 1 and it is Islamiyat as usual. And Surah Al-Alaq is the starting of the revelations of Quran, which Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam got in the cave of Hira by angel Jibreel alayhi salam. Okay, and angel Jibreel alayhi salam taught what Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We will study about that. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladhi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul Azim. Starting with the name of Allah, most beneficent, ever merciful. Read in the name of your Lord, who created men out of a clot of congealed blood. Proclaim, and your Lord is most bountiful. He who taught by the pen taught men what he did not know. My dear students, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam जब 40 साल की उम्र के पहुंच गए और he went to Ghar Hira, to the cave of Hira for the meditation. जहालत का दौर है और आप अमीन और सादिक हैं, आप गार हिरा जाते हैं और एक दिन he listened the voice. So angel Gabriel, Jibreel alayhi salam, Allah ordered him to go to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He went to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Or what happened? The first 5 verses of Surah Alaq has revealed. Allah had revealed first 5 verses of Surah Al-Alaq. Basically, these verses, even the lecture number, with the passage 1, passage 2, and this passage number 3, this is about Allah's creation with the whole world, with the mankind, with the creation. ये सब ये एक्सप्लेन करिए कि अल्लाह का रिलेशनशिप क्या है जो उसने दुनिया बनाई उसके साथ. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रेवलेशन हुई गार हिरा में स्टार्ट हुआ सूरह अल-अलaq की 5 आयतों से, वो तकरीबन 23 साल का अर्सा कुरान को पूरा नाजिल होने में हुआ. मक्का एंड देन मदीना 22.5 years और 23 years और कुरान पूरा नाजिल हो गया. सो इन द कुरान, जब आप कुरान खोलते हैं तो आपको कंपाइलेशन नंबर्स भी मिलते हैं, रेवलेशन नंबर भी वहाँ पे वाज़ेह होते हैं, और मक्किया मदनी सूरा भी लिखा होता है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड. सो द मेन थीम ऑफ सूरह अल-अलaq. First, we will go towards this reference that he said, I know what you know not, and he taught Adam the nature of all things. इनके फरिश्तों से अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, और उसने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, सब सिखाया, अस्माउल हुस्ना सिखाए. फरिश्तों से क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, मा लम यअलम. अब अल्लाह ने इंसान को क्या सिखाया? अल्लाह ने इंसान को बनाया किससे? सड़े हुए गाड़ी की मिट्टी से. मीन्स एक नुत्फे से बनाया. अल्लाह को विशी माफ़ करे अगर हम कुछ गलत बोल जाएं या सुन लें तो अल्लाह फरमा रहे सूरह अलaq में कि पढ़ अपने रब के नाम से जो क्रिएटर है, जिसने तुझे बनाया तुझे एक नुत्फे से, एक जमे हुए खून से, एक नुत्फे से तुझे पैदा किया, और अपने रब की पाकी बयान कर, उसका शुक्र बजा ला, उसकी हम्द बयान कर. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, और अल्लाह का शुक्र बजा ला. और अल्लाह ने हम पे एहसान किया, हमें कलम का यूज़ सिखाया, कलम से लिखते कैसे हैं, और हमें नॉलेज दी, हमें विजडम दिया, और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था. इसलिए कहते हैं कि मैं कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ही सिखाने वाला है. You have to understand that Allah is the Lord, and by Allah's order we are doing some stuff, we are doing something,
and even Allah has granted us everything, we have to be thankful to Allah Jalla Jalaluhu. We have to do thanksgiving prayers as well as congregational prayers. जैसे हम फराइज नमाज पढ़ते हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, हमें शुक्राने की नफिल भी अदा करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें बहुत एहसान किया है. So the main theme of Surah Al-Alaq is studying about Allah's creation with the created world, and 5 verses which Allah has revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उसमें क्या समझाया जा रहा है कि अपने प्रभु की पाकी बयान करो और अल्लाह ने जो तुम्हें सिखाया उस पर उसका शुक्र अदा करो. ठीक है, पहले तो ये बात ये हो रही है कि पढ़ने को बोला गया तो आपने पढ़ना. पहले तो आप जानते हैं कि it was not so usual to be literate in that era. So बात कर सही पढ़ से, इक़रा, पढ़, रीड. सो ये सबके लिए काम है, कुरान सबके लिए नाज़िल हुआ है ना. तो पढ़ना क्या है कि अपने रब के नाम से शुरुआत कर. ठीक है, कि अल्लाह एक है और जिसने हमें सिखाया, हमें पैदा किया और कैसे पैदा किया ये भी बताया गया, और अल्लाह ने हमें ऑनर दिया. In this main theme you can see the honor that Allah had taught us how to use the pen, how to learn the things, and the knowledge we are just gaining. This is all from Allah Jalla Jalaluhu. Or originality, the reality of man is what? That we are nothing. The main theme of Surah Al-Alaq is telling us that we have to believe that Allah is one. He taught us. We have to proclaim the bounty of the Lord. He made up us with the congealed blood, and हमें वो सिखाया जो हम नहीं जानते थे. हमें कलम से लिखना सिखाया. So my dear students, you have to understand, Surah Al-Alaq is very genuinely important, cogently important for us. और वो बयान क्या करते हैं अल्लाह ताला उसमें? इंसान से अल्लाह का रिश्ता जो है, दुनिया से जो अल्लाह का रिश्ता है, जो क्रिएशन है वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई? पढ़, इक़रा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन थीम, दैट अब मेन थीम आपको समझा रही है कि इसमें ट्रांसलेशन में या इस अरबी में क्या नाजिल हुआ. इंपॉर्टेंस में आप लिखेंगे क्या? दैट कि अल्लाह ताला ओमनी प्रेजेंट है, ऑल नोइंग है, ओमनीसाइंट है. अल्लाह ने हमें पैदा किया है एंड हमें वो सिखाया जो हम नहीं जानते थे. उससे फरिश्तों से भी ये फरमाया कि मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया. अंडरस्टैंड? एंड मुस्लिम हैव टू वर्शिप अल्लाह जल्ल जलालहू, एंड हमें अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस नहीं करना. वल्लाहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, हद से तजावज़ करने वालों को भी पसंद नहीं फरमाता अल्लाह ताला. वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, वो ज़ालिमी को पसंद नहीं करता. ठीक है, तो हमें किस में से करना होना है? हमें शाकिरीन और साबरीन में से होना है. ज़ुहद और तक़वा इख्तियार करना है. वी हैव टू bow to Allah Jalla Jalaluhu, and we have to understand the limitations and criteria, because how we will be answerable for every deed of us. जब इंसान कब्र में जाएगा, वहां के साथ जो मामलात होंगे, अगर अमाल अच्छे हैं तो बचत है, अदरवाइज. सो एक ओपिनियन, एक मशवरा भी है आपको. आपने उंगलियों पे अस्कार करने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु अकबर. तो इंशाल्लाह कब्र में अल्लाह ताला आपकी उंगलियां नूर से रोशन कर देंगे इंशाल्लाह. अंडरस्टूड? सो as an Islamic teacher, this is my duty. We have to understand the criteria and the level of Islam, and we have to believe and we have to follow that at any cost. और अल्लाह ताला हमें भी और अच्छा पढ़ाने की और आपको अच्छा सीखने की तौफीक दे, हमें और ज़्यादा सीखने की तौफीक दे. So, and the importance of main theme, we have to the role of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a messenger of Allah, and the role of angel गैब्रील अलैहिस्सलाम, मीन्स जिब्रील अलैहिस्सलाम, कि उनका क्या रोल है. कि अल्लाह ने उनको कंफर्म कर दिया सूरत में कि फरिश्ते हैं और फरिश्ता ही नबी के पास आया. अब जब ये रिवलेशन हो गई थी, इन इम्पोर्टेंस में मेन थी, यू कैन राइट दिस ऑल्सो. जब रिवलेशन केम डाउन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा. ही वाज सो इन टेंशन, ही वाज सो, मतलब पहले फरिश्ता देखा तो उन्होंने और परेशानी का आलम था, बुखार भी हो गया था. Then Hazrat Khadija had consoled Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and she took him to Hazrat Warqa bin Nawfal, cousin of Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala. And what Warqa bin Nawfal said? He said he is the same angel which came to Jesus Christ. इससे पहले के जो अंबिया हैं, या स्पेशली जीसस क्राइस्ट अलैहि सलाम,
उनके ऊपर जो फरिश्ता उनके पास आता था, ये वही फरिश्ता है। एंड इट्स कंफर्म दैट इस्लाम इज द रिलीजन एंड इट्स द स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्यूशन टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद शुरुआत हुई, कुरान नाजिल हुआ और अल्लाह ने खुद कसम खाई कि इसकी हिफाजत की, और अल्लाह ताला ऑलवेज सेविंग कुरान and his people also. So we have to thankful to Allah at any cost, and we have to thank Allah that Allah Ta'ala had given us pen to be taught. We have to Allah gave us wisdom, Allah gave us everything, and the importance of the main theme that you have to write, that Allah is the only one who taught us. If He did not order our brain, our hands to write, we cannot do anything. हर चीज़ अल्लाह कुरान में फरमा रहे, इंसान को वही मिलता है जो जिसकी वो कोशिश करता है। हम कोशिश करते हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी। So the main theme is we had I talked to you about the main theme, and in the main theme we had learned that अपने रब की पाकी बयान करना, अल्लाह ने हमें कैसे पैदा किया, और अल्लाह ने हमें वो सिखाया जो हम नहीं जानते थे। And importance of the main theme, what we studied, that whatever we are having, that's all belong to Allah, and the role of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, role of angel Gabriel alayhi salam, and Allah Ta'ala taught us what we don't know. And last of all, Surah Al-Alaq narrates us about the knowledge. मैंने ऐसा सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा से निकले थे, इन 5 वर्ष के बाद उनके पास 50,000 उलूम वो नासिल हो चुके थे। दिस इज अल्लाह, ठीक है। सो जब से तेरा जिक्र करने लगे, काबिल जिक्र हो गए हम भी। ये अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, और अल्लाह ताला हमें और आपको अच्छा सीखने की तौफीक दे और हमारी आपकी बख्शिश फरमाए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लव योर किड एंड कैन, एंड always venerate your teachers. So this is end from my side. Remember me and all Muslims in your prayers. Inshallah we will meet in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.